चाह रहा हूं कि इसको आपको समझना है कि क्या है। दिख रहा है ना? आपकी आवाज सुनाई पड़ती है या नहीं पड़ती? मुझे शक होने लगता है कि आप लोग सो गए। ओके, सो आई एम टेलिंग दैट इन all these three techniques there is a hybridization and one word is common, that is probe. अब ये बताओ प्रतिभा, प्रोब क्या है? मैं बहुत बार पूछा हूं, प्रोब क्या है? हाँ हाँ, शगुन बताइए, शगुन क्या नाम है? शगुन है, कौन सर है? अनुष्का। अनुष्का, आप बताओ प्रोब क्या है? Sir, non-sequence of DNA. Sequence of DNA Yes, that is नॉन सीक्वेंस ऑफ fluorescent level डीएनए। or और radio कुछ है level. उसमें? और कुछ भी है उसमें? That is हाँ fluorescent level or radio level. हाँ, it is radio level or fluorescent level. So just to locate the position of the gene in the chromosome, we use the fluorescent dye or radio level dye. Okay, now in DNA microarray, where is the probes? In DNA microarray technology, where is the probes? I'm just going to next slide. What is, where is the probes? Probes कहाँ है बताओ, ये बताओ, probes कहाँ है? Probes कहाँ है? So probes is present in the DNA chips. Do you know this is, you see the diagram, one is the normal and one is the defected. Suppose in case of yeast, so defective gene may be present in one. Okay, so in that case DNA microarray, I am talking about DNA microarray technique. How can you do? So first you isolate the mRNA from particular cell for the study of DNA microarray. क्या निकालेंगे पहले? mRNA. इसके बाद कौन सा प्रोसेस करेंगे? कौन सा प्रोसेस? क्या लिखा हुआ है? रिवर्स, क्या लिखा हुआ है? स्लाइड शेयर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ, ये बताओ कि स्लाइड शेयर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir, हो रहा है. हाँ, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आरएनए Reverse आइसोलेशन के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सिंपल। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? व्हाट एंजाइम you will use for DNA microarray technology? reverse Reverse transcriptase. transcriptase enzyme. Okay, now what you will do, you again, that is the non sequence cDNA, that is the cDNA. Okay, now you tag this cDNA with the two type of dye. So you just see, this is a fluorescent green and this is the fluorescent red. Okay, now this is the chips, DNA chips, that is the made up of, that is the silicon or glass. Now equal amount of both the level DNA we mix in the well, okay, in the chips. So what happens if we observe after hybridization, we left for hybridization, that is known as incubation. छोड़, कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, उस टाइम को कहते हैं इंक्यूबेशन। जैसे ही ये हाइब्रिडाइज हो गया, then you can observe the different color on the different spot that is present on the well. So in the some spot you find the red color, some spot you will find the green color, and some spot you will find the yellow color. So yellow color means equal quantity of both DNA, both DNA is going to express, means there is some defective gene. But if only green color or red color, then it is normal gene. If it is yellow color or orange color, then it is defective gene. So just try to know how can you observe with the help of laser. Laser, that is the monochromatic light. Okay, so this is the hybridization with the probes. Okay, now with the help of laser light, monochromatic light, single wavelength light, physics में आप पढ़े होंगे monochromatic, one wavelength. So laser beam will be passed through this materials and there is excitation of that fluorescent dye and it will flourish. Okay, now it will emit the light and you can observe this in the, this is the actual DNA chips where we can observe the different color of that, and then with the help of confocal microscope we can analyze the data, means what is the expression of the gene
what is the function of the particular gene, means in 1 millimeter square area we can compare the function of thousands millions of the gene साइमल्टेनियसली। ये नहीं कि एक ठो अभी करेंगे एक 10 मिनट के बाद, ऐसा नहीं है। एक ही समय में विद इन ए 1 millimeter स्क्वायर एरिया वी कैन स्टडी 1000 जीन मिलियंस जीन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So this is the DNA microarray hybridization, and this is the comparative DNA microarray hybridization. You can also understand these things through the next slide. Okay, आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये कैंसरस सेल है, ये नॉर्मल सेल है, दोनों के केस में सेम प्रोसीजर मैं अपना रहा हूँ। mRNA आइसोलेट किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया, cDNA बनाया, एक cDNA को किसके साथ टैग किया, ग्रीन के साथ, एक को रेड के साथ, दोनों को कंबाइन किया और दोनों को माइक्रोचिप में हाइब्रिडाइजेशन के लिए छोड़ दिया। Now after some times you will find with the confocal microscope in presence of UV light or monochromatic light we observe the emission of light, intensity of light, कि what are the different intensity of light. So this is the major pathway process through which we study the DNA microarray hybridization. Okay, समझ में आ गया? ये आपके बुक में डायग्राम है, ये देखो ये एक्चुअल है। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन द डीएनए चिप्स। ये दिख रहा है आपको, एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन द डीएनए चिप्स। समझ में आया? तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दिस इज द बायो चिप्स और डीएनए चिप्स। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन स्टडी द जीन। क्या स्टडी करते हैं? फंक्शन ऑफ द जीन, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विद इन नो टाइम्स। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको पता चल जाएगा। तो ये है डीएनए माइक्रोएरे हाइब्रिडाइजेशन। So we can compare the different gene function. Means some gene is functioning at larger scale, high expression, or some gene functioning at low expression. We can compare the normal gene and cancerous gene. Normal cell or cancerous cell means quickly diagnose the cancerous cell and their activity, how they are spreading. Okay, so this is the very informative technique and useful technique for quick diagnosis of different type of disease. Now come to FISH technology. आपको मैं बताया कि ये मैं किसके अंडर में स्टडी कर रहा हूँ, फंक्शनल जीनोमिक्स। तो पहला टेक्निक था, क्या था? डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे में क्या था? डीएनए चिप्स पे कोट किया हुआ था प्रोब्स और उस पे हम अननोन डीएनए सैंपल डालते थे, बताए थे ना। अब FISH टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं सर? हाँ, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछो। देखिए यहाँ पे जो है आपको ये प्रोसीजर है, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा। ये प्रोसीजर है कि जब सबसे पहले FISH टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले मेटाफेज स्टेज का, पार्टिकुलर टिश्यू का या पार्टिकुलर सेल का स्लाइड बनाते हैं। मेटाफेज आपने पढ़ा है ना, सेल डिवीजन, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। So we can do the FISH technology first preparation with the metaphase chromosome slide, glass slide, then dehydrate in ethanol and denature the DNA at 70 degrees Celsius. What do you mean by denaturation? आपको बताया हूं ना, breaking of hydrogen bond, breaking of hydrogen bond between two nucleotide of two different strand DNA, double stranded DNA, तब जो है ये denature हो गया। Then we put the leveled probe। लेवल प्रोब मतलब कि जिसमें जुड़ा हुआ है, टैग किया हुआ है, क्या? फ्लोरोसेंट डाई या रेडियो लेवल कंपाउंड, ठीक है ना। अब उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे, कितना डिग्री के पर? 37 डिग्री पर। कितने आवर के लिए? 4 to 6 आवर। क्या है प्रोसेस? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉमन वर्ड इन 3 टेक्निक्स, सॉदर्न प्लॉटिंग में भी, डीएनए माइक्रोएरे में भी, और यहाँ पे भी FISH टेक्नोलॉजी। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, मैं इसको इस जो पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको समझना है कि पहले क्या करते हैं। मेटाफेज स्टेज जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी पार्टिकुलर सेल का, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो कैंसरस हो, ओके। अब उसको डिहाइड्रेट करते हैं इथेनॉल से,
इथेनॉल आपको पता है C2H5OH है ना। तो इसके बाद उसको डिनेचर करते हैं कितना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बिकॉज collectively hydrogen bond is very strong, so we put near 70 degrees Celsius. Okay, after denaturation we will put the level probe just to hybridize with complementary end position in the unknown DNA sample in present in the chromosome. तो ये कहाँ प्रोब कहाँ बाइंड करेगा, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए है, पता है ना। क्रोमोजोम कहाँ है, Yes. कोई बताएगा, क्रोमोजोम कहाँ है, कोई बताएगा, क्रोमोजोम कहाँ है, कोई बताएगा। सेल में होता है, में कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या नहीं तो इसमें लाइसोजोम में होता है, या नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है, Nucleolus. न्यूक्लियोलस। वेरी गुड। सो न्यूक्लियोलस में होता है। अब जो आफ्टर हाइब्रिडाइज, आफ्टर डिनेचुरेशन द प्रोब विल बी बाइंड, अदरवाइज इट विल नॉट बाइंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिना डिनेचुरेशन का प्रोब बाइंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरलॉक रहेगा। ओके, आपस में एंटी पैरेलल होता है डीएनए, ये इंटरलॉक होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एट 37 डिग्री सेल्सियस वी लेफ्ट इट फॉर इंक्यूबेशन for 4 to 6 hours. After hybridization, with the help of washing buffer, we remove unwanted unhybridized probe. ये सिंपल प्रोसीजर मैं बता दिया, ठीक है ना। अब कुछ डायग्राम आगे देखिए जो आपको पता चलेगा। ये चेम्बर है जो बनाया गया है जस्ट फॉर मेकिंग द ग्लास स्लाइड, एंड देन दैट इज यूटिलाइज फॉर द फिश टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने डिस्कस किया था प्रोसीजर कि सबसे पहले हम स्लाइड बनाएंगे, ठीक है ना। स्लाइड बनाने के बाद उसको डिनेचर करते हैं। डिनेचुरेशन का मीनिंग समझ लीजिए, पीसीआर में मैंने बताया है। व्हाट डू यू मीन बाय डिनेचुरेशन, कि मींस ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen. यस, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड होता है ना। कोई कुछ बात है तो Yes. बताओ, कोई बात है तो आप हमको पूछ सकते हैं हमसे। अब जैसे ही डिनेचर हो गया उसके बाद इस पे प्रोब डालते हैं। जैसे ही प्रोब डाल दिए, इंक्यूबेशन कर दिए 4 आवर और उसको छोड़ दिए। आफ्टर इंक्यूबेशन वॉश करने के बाद देखते हैं कि यू कैन फील इन यूवी लाइट इन कनफोकल माइक्रोस्कोप। ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, कनफोकल माइक्रोस्कोप। इसमें देखते हैं कि लाइट इज इमिटिंग in presence of UV light. Okay, this arrangement, and we can find out the localization position of the hybridized portion of the probe with unknown DNA present in the chromosome. ठीक है ना। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। पहले क्या करते हैं, मेटाफेज स्टेज बनाएंगे डीएनए क्रोमोजोम का, उसके बाद उसको डिनेचर कराएंगे उस 70 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद उसमें प्रोब डालेंगे, ठीक है ना। प्रोब डालने के बाद उसको छोड़ेंगे। प्रोब क्या करेगा, जस्ट देखो ये प्रोब के साथ ये जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, लाइट इज इमिटिंग। जहां जहां प्रोब बाइंड करेगा वहां वहां से लाइट इमिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोब्स है जुड़ा हुआ है किसके साथ, विद द ये फ्लोरोसेंट डाई किसके साथ जुड़ा हुआ है, विद प्रोब्स। तो जहां जहां क्रोमोजोम में डीएनए है सारी जगह, लेकिन जहां जहां प्रोब बाइंड किया वहीं वहीं लाइट दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ये जीन है और इसका सीक्वेंस भी पता है प्रोब का, तो ये कहाँ पे, मैं ये बताना चाहता हूँ। और ये प्रोसेस क्या है, दिस द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द एक्चुअल लेबोरेटरी प्रोसेस फॉर द फिश टेक्नोलॉजी। ये दिख रहा है आपको, ये दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कभी भी फिश टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है। ये डिनेचुरेशन कितना डिग्री पे करेंगे पता है आपको, 70 टू 90 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री सेल्सियस। डिनेचुरेशन आपको पीसीआर में बता चुका हूँ। अब ये प्रोब, ये दिख रहा है आपको प्रोब, प्रोब है नॉन सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसके साथ अटैच किया हुआ है फ्लोरोसेंट डाई, बांधा हुआ है इसके साथ, ठीक है ना। जैसे ही ये बांधा हुआ है, जैसे ही ये डिनेचर हो गया डीएनए, अननोन डीएनए सैंपल, उसको हाइब्रिडाइज करेंगे। सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्रोब विद अननोन डीएनए सैंपल। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द probe with unknown DNA sample present in the chromosome. That chromosome give the location of particular gene with the help of light of emitted by this
this fluorescent dye present in with the probes. So light is emitting in presence of UV light. Okay, yeah, and we can observe this thing quickly in confocal microscope, and we try to find the location of the gene. That is the advantage of this phase technology. तो आपको सिंपल समझना है, दिस इज द डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. We cannot do FISH technology in double stranded DNA. First, you have to make the single stranded DNA. After denaturation, we can add the probes. After adding the probes, we can observe this DNA that is present in the chromosome in the confocal microscope, जो पहले मैं बताया हूँ, and it will flourish and it will emit the light. तो ये कैसे पता चलेगा? ये दिख रहा है आपको, जस्ट सी, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम टेकन बाय दिस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप. दिख रहा है आपको कि ये जो प्रोब है एक पार्टिकुलर डाई से लेवल किया हुआ है और ये क्रोमोसोम में डीएनए में लोकलाइज है. ठीक है ना, ये यहीं पे बाइंड किया है, ये यहीं पे बाइंड किया है, ये यहीं पे बाइंड किया है. दिख रहा है आपको? सो दीज आर द पोजिशन of the probes that is hybridized, and that is the position of the chromosome, because chromosome contain, whole portion of the chromosome contain DNA. तो ये जो एक्चुअल डायग्राम है ये लोकलाइजेशन बताएगा कि मैंने बताया है क्लास 11 में टेलोमेरिक रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन, मेटासेंट्रिक रीजन. सो दिस गिव्स क्विक डायग्नोसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द जीन एंड गिव द क्लू बताएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द जीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन. अगर आपको पता चल गया प्रोब के बारे में तो जहां बाइंड किया उसका सीक्वेंस पता चल गया. सपोज प्रोब का सीक्वेंस है ATGC, तो डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा वहां पे? ATGC प्रोब का सीक्वेंस है, तो बताओ डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा? नहीं बताओगे? क्या होगा डीएनए का सीक्वेंस? जल्दी बोलो. TACG. वेरी गुड. सो दिस द एक्चुअल डायग्राम दैट इज गिवन थ्रू फिश टेक्नोलॉजी. अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एप्लीकेशन क्या है फिश टेक्नोलॉजी का. एनिप्लॉइडी कंडीशन है क्रोमोसोम सेल में, कैंसरस सेल में, तो आपको तुरंत पता चलेगा. एनिप्लॉइडी समझता है, मोर देन नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 46 नहीं है, 2n इक्वल टू 47 है, या 2n इक्वल टू 92 है. ये एबनॉर्मल पॉलीप्लॉइडी कंडीशन मीन्स डिप्लॉइड नहीं है क्रोमोसोम, एबनॉर्मल क्रोमोसोम. आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्कर क्रोमोसोम means you will find the location of the gene in the chromosome. Monitoring the effect of therapy means जैसे कैंसर का थेरेपी चल रहा है किसी का, तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि सही में नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ. डिटेक्शन ऑफ अर्ली रिलेप्स और मिनिमल रेसिडुअल डिजीज, कि कितना कम डिजीज हुआ है, कि कितने सेल में आपका कैंसरस सेल अभी कैंसरस प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, किसमें नहीं है. So it will quickly diagnose the leukemia, blood cancer, the Philadelphia syndrome. Detection of the gene deletion and gene amplification means quickly diagnose on the basis of intensity of color of the fluorescent dye. It will quickly diagnose the gene position where there is a gene deletion or gene amplification. So these are the application part of the this FISH technology. ये आपका that is the advantage. This is means you can use this technique means only one or few abnormality can be assessed. लिमिटेशन है ये, कुछ लिमिटेशन भी होता है. हर टेक्निक का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और कुछ लिमिटेशन होता है. ठीक है, तो यू कैन सी, आई विल शेयर दिस स्लाइड. Only one or few abnormality can be assessed with the help of this FISH technology due to failure to detect the signal. FISH is higher sensitive for trisomy. Trisomy समझते हो आप क्या होता है? 2n plus 1. मोनोजोमी 2n minus 1. वो आपको मैं बताया हूँ क्लास 11 में, बताया ना म्यूटेशन चैप्टर में. ट्राइजोमी कंडीशन है, मोनोजोमिक कंडीशन है. Cytogenetic data can be obtained only for target chromosome. Thus, FISH is not a good screening tool for cytogenetically heterogeneous disease. मतलब कुछ कंडीशन में ये डिसएडवांटेज लिमिटेशन भी है, लेकिन अगर आपको लोकेशन पता करना है जीन का एक्सप्रेशन पता करना है, तो वी कैन यूज एट हायर लेवल this FISH technology. It take less time than karyotype preparation for a study of the cancerous cell. ये एडवांटेज क्या है?
efficiency of hybridization and deletion is high, बहुत ज्यादा क्विकली हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज हाई, मींस अगर लो क्वांटिटी में भी है तो आपको तुरंत बता देगा। साइटोजेनेटिक डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन डिवाइडिंग और टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल, मतलब ये लिविंग सेल का स्टडी नहीं कर रहा है। साइटोजेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सेल, जो आपने ले लिया है उस पे स्टडी कर रहे हैं। सो दिस मेथड हैड अडॉप्टेड फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम्स। ओके, cytogenetic data can be obtained from the poor samples and that contain a few cells for routine cytogenetic study। जब भी किसी बॉडी का, किसी कैंसरस पर्सन का स्टडी किया जाता है तो उसका कैरियोटाइप बनाया जाता है। तो कैरियोटाइप बनाने में इट इज वेरी टाइम टेकिंग, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता है। लेकिन अगर आप दिस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो विद इन ए 4 to 5 आवर वी कैन क्विकली डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल दैट इज कैंसरस। क्या कंडीशन है, सिवियरिटी ऑफ द कैंसरस प्रॉपर्टी क्या है, कि ये डिजीज क्योर होते जा रहा है या ये डिजीज स्प्रेड होते जा रहा है। तो वी कैन डिटेक्ट क्विकली विद द हेल्प ऑफ दिस फिश टेक्नोलॉजी। तो ये मैं अभी डिस्कस कर रहा था। और टुमारो आई विल डिस्कस SNP। व्हाट डू यू मीन बाय SNP? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP का मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपने ट्विंस देखा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है ये कौन, लेकिन आपको पता करना है कि दोनों ट्विंस दोनों अलग अलग है। तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स देखो यहाँ पे सारा का सारा जो जीन है, 80 इसमें भी है, 80 इसमें भी, 80 इसमें भी, 80 इसमें भी है, GC यहाँ भी है, GC यहाँ भी है। लेकिन यहाँ देखो ओनली वन डिफरेंस, दैट इज GC है, तो यहाँ पे चेंज हो गया है, 80 है। So that change we can detect with the help of SNP। तो SNP कल मैं स्टडी बताएंगे कि क्या SNP क्या होता है, क्यों यूज होता है, कैसे SNP इफेक्टिव है फॉर यूज ऑफ द ड्रग्स, में कितना डोज देना है किसी पर्सन को, इट विल डिसाइडेड बाय SNP मैप्स। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द SNP। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, किस में? ट्विंस में भी, क्लोन में भी। क्लोन कहते हो ना, क्लोन समझ लो तुम लोग। क्लोन क्या होता है? आइडेंटिकल इन ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट 1 न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड और 3 न्यूक्लियोटाइड। सो वी कैन स्टडी हाउ कैन यू स्टडी बिटवीन दिस 2 different organism that may have that are clones, means with the help of molecular technique that is known as SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, इट कैन बी डिटेक्टेड ओनली थ्रू, you can detect only with the help of SNP। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। कल मैं SNP डिस्कस करूंगा। ये स्लाइड मैं अभी शेयर कर देता हूं। ये मैं SNP इसलिए डाला हूं कि कल मैं नेक्स्ट स्लाइड शुरू करूंगा SNP का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तो अब नहीं है ना, अब अभी तो नहीं है क्लास ना, इसके बाद तो क्लास नहीं है। हेलो, Yes, sir. हाँ, आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप कितने लोग किए हैं? ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से कितने लोग होमवर्क किए? किसी ने नहीं किया है क्या? सो ट्राई टू कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम। जब भी मैं दिया हूं होमवर्क, कल लास्ट डेट है। हाँ, तो मैंने कल दिया था, होमवर्क भेजा था। इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ लिख दिए ग्रुप में भेज दिए, इतना नहीं होता है। तो प्लीज कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछिए कि इसका क्या आंसर है। नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। Please complete the homework what I have given you yesterday and be come on the time in the class। टाइम से आ जाइए क्लास में, थोड़ा देर के लिए पढ़ लीजिए, 45 मिनट का है, और फिर आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।